students, today we will do another topic of relation and function. Our next topic is binary operation. As the name suggests, binary means two. So it is a type of operation which combines two elements of a set to give another element of the set is called binary operation or a binary composition. It is generally denoted by a star, O or the symbol, and we write it as A star B or A of B, A dot this. These are called binary operations. Example of binary operations are like plus, minus, multiplication, division. All these are binary operations because at a time we can take addition of two numbers. If we want to add three numbers, then first we add two numbers and then we take another number. So at a time two are connected and third one is connected by another operation. So as we connect only two numbers at a time, numbers or sets or anything can be connected according to our set on which this operation is done. As two elements of the set are connected, so it is called binary operation. Notations are these. Any of these can be used. Similarly, minus sign, we can connected only two elements, take product of two and the division of two. We can take any of these. These are all binary operations, right? Similarly, union and intersection of sets, maxima, minima operations, these all are binary operations, right? Take definition. Let A be a non-empty set. If it will be empty, then no operation can be done on this. So first condition is A should be non-empty set. Then the function from A cross A, क्योंकि हमें दो एलिमेंट चाहिए जिनके ऊपर हमें ऑपरेट करना है, इसीलिए हम एलिमेंट्स लेंगे A क्रॉस A, यानी कि दो एलिमेंट लेंगे और वो कनेक्ट होने के बाद यानी कि उसके ऊपर ऑपरेशन होने के बाद वो एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एलिमेंट भी इस सेट को बिलोंग करना चाहिए. ओनली देन इट विल बी ए बाइनरी ऑपरेशन. इसकी नोटेशन है ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम ए टू ए क्रॉस ए टू ए. एग्जाम्पल से समझिए. जैसे कि हमें ये सेट दिया हुआ है विच हैज़ एलिमेंट्स 0 1 2 3 4. अब हमें देखना है कि इस पर कौन कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है. इफ़ आई एम टेकिंग द एडिशन, सो 0 and 1 के एडिशन 1, 0 2 के एडिशन 2, 0 3 3 and 0 4 4. ये तो सारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं. हमने क्या लिया, इनके दो एलिमेंट्स लिए और दोनों के दोनों इसमें बिलोंग कर रहे हैं. जैसे 1 + 2, दो एलिमेंट हमने इसी सेट के लिए और वो उसका रिजल्ट क्या बना 3, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट. बट और वी कैन से 1 2 कनेक्टेड टू 3. ऐसे भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट टू सी इन दिस फॉर्म. लेकिन इफ़ वी आर टेकिंग 1 and 4, देन इट बिकम्स 5. ये दोनों तो ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आया हमारा एडिशन ऑपरेशन के बाद वो 5 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए फंक्शन डिफाइंड नहीं हुआ. कुछ एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड है, लेकिन हमारी फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा फंक्शन है वो सारा का सारे इमेजेस जो है वो इसमें होनी चाहिए, कोडोमेन में होनी चाहिए. लेकिन यहाँ हमारे जो हमने प्लस का ऑपरेशन लिया है उसके कुछ एलिमेंट्स के इमेजेस इसमें नहीं आ रही हैं. सो दिस इज़ नॉट डिफाइंड. एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स. अगर मैं ऑड इंटीजर्स लूँ, ऑड इंटीजर्स जैसे 1 3 -1 -5, इस तरह का सेट होगा जिसमें ये सारे के सारे नंबर्स होंगे.
अब इसमें देखिए, इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन, अगर मैं प्लस का ऑपरेशन करती हूँ देन आई टेक 1 + 3, इट विल बिकम 4, बट 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ odd integers. It means this plus operation is not defined on this set. If I am taking multiplication, then 1 into 3, it becomes 3. Means multiplication operation is defined on set of all odd integers. You can take another example, -1, -5, again it becomes 5, odd number. And we know product of two odd integers will always be an odd integer. It means set of all odd integers is a binary operation for multiplication but not for addition. Similarly, it is not defined for minus. I am taking if 1 and 3 minus, it will become plus. No, sorry, even integer. So the result means image is not belongs to this set. So plus and minus is not defined, is not a binary operation for set of all odd integers, but multiplication is defined. Similarly, if I am taking case of division, if I am taking the binary operation division, again it is not defined, because if I am taking 3 upon 1 means 3 divided 1 by 1, it is 3, but if I am dividing 3 by 5, then 3 by 5 does not belongs to set of all integers. Integers 3 by 5 जो है वो integer नहीं होगा. और एग्जाम्पल लेते हैं हम. नेक्स्ट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इसी तरह से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऑपरेशन इस पे डिफाइंड होता है और कौन कौन सा नहीं होता है. इफ़ आई एम टेकिंग प्लस ऑपरेशन, then addition of any two natural numbers, if a and b are two natural numbers, then their addition is always an natural number. So plus is a binary operation on n. Similarly, multiplication is also a binary operation on n. एक बात ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन और बाइनरी ऑपरेशन का साइन, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. बाइनरी ऑपरेशन हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इधर इट कुड बी प्लस, माइनस और एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन इट कुड बी, बट दिस इज द साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन इन दिस चैप्टर. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टार है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि एक स्पेसिफिक बाइनरी ऑपरेशन के लिए यूज़ होगा. अब प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स, बट subtraction is not a binary operation on n. For example, if I am taking 1 minus 2, 1 and 2, 1 and 2 both belongs to natural numbers, but 1 minus 2 is minus 1, which does not belongs to natural numbers. So minus is not a binary operation on n. Similarly, division is also not a binary operation on n, as we divide 2 by 4, which will give 1 by 2, which does not belongs to n. So plus and multiplication are defined on n, but minus and division is not defined on n. If we take example of from integers, इंटीजर्स से अगर हम लेंगे तो माइनस जो है वो डिफाइंड हो जाएगा हमारा. लाइक इफ वी टेक 1 minus 2 minus 1, then that will belongs to set of integers. This is the set of integers. तो ये इंटीजर्स को बिलोंग करेगा. चाहे आप ये ले लीजिए -2 माइनस ऑफ -3, कोई भी नंबर ले लीजिए, उनकी अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं दैट विल बिकम -2 + 3 1, अगेन बिलोंग्स टू इंटीजर्स. जो ऑपरेशन सबसेट पे डिफाइंड है वो उनके सुपर सेट्स पे अपने आप डिफाइंड हो जाएंगे. जैसे कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से बड़ा वाला सेट होता है इंटीजर्स का. नेचुरल नंबर्स पे हमने कहा कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, तो उसके जो सुपर सेट होगा, सुपर सेट यानी कि जो उसको कंटेन करेगा सेट, उसके अंदर भी वो दोनों फंक्शन डिफाइंड होंगे. तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन आप करके देख सकते हैं, वो इंटीजर के सेट को
पे डिफाइंड हैं, यानी कि उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होता है। इसी तरह हमने देखा कि माइनस का जो है सब्ट्रैक्शन जो है दैट इज़ ऑल्सो डिफाइंड ऑन इंटीजर्स, बट डिवीजन अगेन इन दिस केस इज़ नॉट डिफाइंड। मीन्स इफ आई एम टेकिंग 2 डिवाइड बाई 3 which will become 2 by 3 and that does not belongs to Z, but this belongs to set of rational numbers. Hence division is defined on the set of natural numbers and again it is defined on the set of real numbers also. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Show that binary operation from R cross R, R means set of real numbers, R cross R to R given by AB इज़ कनेक्टेड टू A प्लस 4B स्क्वेयर. अब ये देखिए यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है ये इसने बिल्कुल डिफरेंट लिया है, तो इस तरह का कोई भी अप्लाई हो सकता है. एज वी आर कनेक्टिंग 2 एलिमेंट्स, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन. दिस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन. वी हैव टू शो दैट R cross R to R means we have to take both A and B from R. We can take any real number R and then operating on this A B to A plus 4B square. Then we know as A and B belongs to real numbers, B square also belongs to real numbers, then 4B square also belongs to real numbers and hence A plus 4B square. अगेन ये आपका एक रियल नंबर ही बनेगा. इट मीन्स दिस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर. एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं. लाइक मैंने इसको 2 and 3 पुट किया, देन इट बिकम्स 2 plus 4 into 3 square, which will becomes 2 plus 4 into 3 square means 9. So 2 plus 36 which is equals to 38 belongs to real number. रियल नंबर है ये. सो दिस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. इस बार हम सेट से ले रहे हैं एग्जाम्पल. लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट एक्स. पी जो है वो हमने पावर सेट लिया है. सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट एक्स, एक सेट हमें एक्स दिया हुआ है, उसका हमने पावर सेट बना लिया पी. अब हमें 2 ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, एंड वी हैव टू शो दैट दीज 2 ऑपरेशंस आर बाइनरी ऑपरेशंस. देखिए एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. हमें पता है कि जो भी 2 सबसेट्स होंगे अगर हम उनको यूनियन लेते हैं तो वो अगेन एक सबसेट बनता है. एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा. लेट मैं सेट लेती हूँ 1 2 3. तो इसका पावर सेट में इसके सारे सबसेट्स आएंगे. स्टार्ट विथ 5. आई गॉट 1 2 3 1 2 1 3 2 3 and in the last set itself 1 2 3, having 8 elements, because we know elements of power set, elements in the power set is equals to 2 to power elements in the set which is equals to 8. Count कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8. So we got all the members of this power set. Now we have to show that union from P cross P to P, यानी कि हमें इसमें से कोई भी 2 सेट लेनी है और उनकी यूनियन लेनी है. अगर मैं इन दोनों सेट्स को लेती हूँ तो इनकी यूनियन हो जाएगी, we can write it as 1 2. Again it belongs to here. Taking this and this, अगर मैं इन दोनों की यूनियन लेती हूँ we will get this will become 1 3. इस तरह से आप करके भी देख सकते हैं. तो आप किन्हीं भी 2 सेट्स की 2 एलिमेंट्स, इसके 2 एलिमेंट्स की यूनियन लेंगे तो दैट विल बिकम एन एलिमेंट ऑफ P. सो यूनियन ऑपरेशन, यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो हमारा यूनियन है. यूनियन ऑपरेशन इज डिफाइंड फ्रॉम P क्रॉस P टू P. Similarly we can show for intersection.
take intersection of these two, if I am taking intersection of these two, then as these two sets have nothing in common, this will become 5. Again it belongs to P. If I am taking this and this, then it has element 1 in common, which is set 1 here. So intersection of AB also belongs to P. So intersection operation is a binary operation on the set P. एक और ऑपरेशन मैं आपको बताती हूँ. Show that the maxima operation, इसको बोलते हैं मैक्सिमम, from R cross R to R is given by, if I am taking two elements of R, then it converts to maximum of AB. Means we have to take whichever is maximum of A and B. Similarly, this is the minima operation, and we have to show this is a binary operation. If I am taking any two elements of R cross R, means I am taking two real numbers A and B, then it converts to maxima of A and B. Maxima of A B क्या बनेगा, या तो A होगा या B होगा. ठीक है. अब A और B दोनों R को बिलोंग कर रहे हैं. इट मीन्स मैक्सिमा ऑफ दीज टू ईदर A or B, whatever it will be, belongs to R. So maxima is a binary operation on R. Similarly, इन दोनों एलिमेंट्स का मिनिमम लेना है हमें, तो इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो इस सेट को बिलोंग करेगा. सो मिनिमा इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस. इसी चीज़ को कंपोजिशन टेबल से समझाया गया है. कंपोजिशन टेबल क्या होती है कि हम इसको एक ग्रिड की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं. जो भी हमें ऑपरेशन दिया होता है, हम इसे मैक्सिमा ऑपरेशन के लिए करते हैं. हमें एक सेट दिया है हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3, एंड वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस A टू A. तो अब हम इसके लिए टेबल बनाएंगे 1 and 1. 1 और 1 के मैक्सिमम नंबर क्या होगा, 1. सिमिलरली अगर 1 और 2 का मैक्सिमम नंबर लेना है, दैट विल बी 2. और 1 और 3 में से मैक्सिमम क्या होगा, 3. नाउ 2 and 1, 2 और 1 का मैक्सिमम होगा 2. 2 और 2 में मैक्सिमम नंबर क्या है, सेम 2. एंड 2 और 3 में मैक्सिमम क्या होगा, 3. सिमिलरली 3 and 1, इट विल बी 3. 3 और 2 का मैक्सिमम लेंगे तो 3, एंड 3 और 3 का मैक्सिमम लेंगे तो 3. इस तरह से हम कंपोजिशन टेबल की हेल्प से भी ये चीज़ कर सकते हैं. आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए कंपोजिशन टेबल बनानी आती है तो आप उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन लिखेंगे जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे. इस तरह से आप एक ग्रिड बना लेंगे और उसके बाद आप इन पे अप्लाई करते चलेंगे. राइट. जैसे कि सेम ऑपरेशन में आपको 3 के लिए करके दिखाती हूँ. वी हैव A B एंड C. अगर यही करना है, वी हैव टू टेक लाइक 1 3 एंड देन 2. तो 1 और 3 का मैक्सिमा, 1 3 का मैक्सिमा 3. मीन्स पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इट विल बी 3. देन 3 और 2 का मैक्सिमा 3 एंड 2 का मैक्सिमा 3. आंसर विल बी 3. तो इस तरह से हम ये ऑपरेशन इस एलिमेंट्स के किसी भी इस सेट के किसी भी एलिमेंट के लिए कर सकते हैं. नेक्स्ट हम आपको इसके बाद हम सेकेंड आइडेंटिटी पे आते हैं, विच इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अब इसके बाद मैं जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बाइनरी ऑपरेशन पे तभी अप्लाई होंगी जबकि बाइनरी ऑपरेशन इन सेट के लिए डिफाइंड होगा. अगर वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है तो हम किसी भी अदर प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे. वो सभी तभी अप्लाई होंगी जबकि फंक्शन डिफाइंड होगा. नेक्स्ट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज दैट अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार
on a set A is said to be commutative if A star B equals to B star A. यानी कि पहले मैं A लेके उसके ऊपर B ऑपरेट करूँ या पहले मैं B लेके फिर A लूँ, तो उन दोनों में रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए. अगेन आई एम टेलिंग यू कि दिस स्टार डज नॉट रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन. ईदर इट विल बी प्लस माइनस और एनीथिंग इट कुड बी. फॉर एग्जाम्पल प्लस का लेते हैं. Like I am taking two elements 2 plus 3, that will become 5. If I am taking 2 at the first position and 3 after that and then and do addition, it becomes 5. Or same result I am getting when I am taking 3 at the first place. तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप 2 को पहले लेते हो या 3 को पहले लेते हो. Then plus is commutative ऑन आर. रियल नंबर्स के ऊपर ये कॉम्यूटेटिव है, लेकिन सेम ऑपरेशन अगर मैं माइनस के लिए करना चाहूँ तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं है. लाइक इफ़ आई एम टेकिंग माइनस ऑपरेशन इज़ डिफाइंड ऑन आर, नो डाउट, बट इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव. सी 2 minus 3 it will become -1, but if I am taking 3 minus 2 it will become 1. Not same. So minus is not commutative on R. Similarly, multiplication is commutative as 2 into 3 or 2 into 5, कुछ भी ले लीजिए आप, hardly matters, is equals to 5 into 2. But division, in the case of division, it is not commutative as 2 upon 3 is not equal to 3 upon 2. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं. शो दैट बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस टू बी. इस बार हमें बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है एंड वी हैव टू शो दिस इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव. देखने में तो लगता है एडिशन है तो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, लेकिन अप्लाई करके देखते हैं. अगर मैं ए स्टार बी लेती हूँ मीन्स आई एम गेटिंग ए प्लस 2b. फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ और सेकेंड एलिमेंट का ट्वाइस लेके उनको ऐड करना है. इफ़ आई एम टेकिंग b क्रॉस a देन इट विल बी b प्लस 2a. नाउ a प्लस 2b इज़ नॉट इक्वल टू b प्लस 2a अनलेस a और b जो हैं वो इक्वल हो जाएं. एग्जाम्पल से करके दिखाती हूँ. 4 और 3 मैंने लिया, ठीक है, इनके ऊपर ऑपरेट किया. देन आई एम गेटिंग 4 प्लस 2 इंटू 3 which is equals to 4 plus 6 10. But if I am taking 3 star 4 then 3 plus 2 into 4 which is equals to 3 plus 8 11, not equal. So this is not commutative. Next property, associativity. एसोसिएटिविटी में जैसे हमने कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में 2 को कनेक्ट किया था, इसमें हम 3 को कनेक्ट करते हैं, 3 एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं. और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि हमें जो ऑपरेशन अप्लाई करना है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए. पहले मैं फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट करके देन थर्ड को अप्लाई कर रही हूँ, या पहले मैं पीछे से 2 को ऑपरेट करके फिर उसके बाद पहला एलिमेंट अप्लाई कर रही हूँ. तो अगर रिजल्ट सेम आता है देन इट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव. इफ़ द रिजल्ट इज़ डिफरेंट देन बाइनरी ऑपरेशन इज़ नॉट एसोसिएटिव. सेम एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं. प्लस के लिए 2 प्लस 3 प्लस 5, राइट. तो पहले मैं 2 और 3 को ऐड करूं, दैट विल बिकम 5 प्लस 5, या फिर मैं 3 प्लस 5 को ऐड करूं, इट विल बिकम 8. अगेन रिजल्ट हेयर इज़ 10, हेयर इज़ 10, मीन्स इक्वल. एक बात का ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर है, यानी कि जो इनकी पोजीशन है एलिमेंट्स की, वो नहीं चेंज करनी है. सिर्फ हमने जो ऑपरेशन का ऑर्डर है वो डिफरेंट किया है कि पहले कौन सा ऑपरेट होगा. अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे फिर वो कम्यूटेटिव हो जाएगा. तो प्लस इज़ एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट विद ऑन आर. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑल्सो एसोसिएटिव as 2 into 3
into 5 is same as 2 into 3 into 5. You can do it yourself. But minus is not associative as 2 minus 3 minus 5. इसको अगर हम सॉल्व करें it will give -1 and -5 will -6. 2 minus 3 minus 5. नाउ ब्रैकेट मैंने चेंज कर दी है, ऑपरेशन सेम है, सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन चेंज की है. तो देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा. 3 minus 5 will be -2, minus minus plus 2 plus 2 will become 4. So -6 is not equal to 4. Similarly, division is not associative with respect to division is not associative on R. एक और एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ मैं. हमें बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है फ्रॉम R क्रॉस R टू R गिवन बाय A स्टार B इज A प्लस 2B. हमें दिखाना है कि ये एसोसिएटिव नहीं है. हमने दिखाया था कि ये कॉम्यूटेटिव भी नहीं है, अब हम शो करेंगे कि ये एसोसिएटिव भी नहीं है. हमें ऑपरेशन दिया हुआ है A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस 2B. अब इस ऑपरेशन को ध्यान से देखिए. इट सेज कि फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ और सेकंड एलिमेंट का डबल लेके ऐड करना है. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो इसका मतलब हुआ पहले मैंने इन दोनों पे ऑपरेट किया, अब मुझे इसमें C करना है. सो इट बिकम्स A प्लस 2B फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ प्लस ट्वाइस ऑफ second element. It becomes this. Now operate A star B star C. तो क्या होगा. फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड. नो, A एज इट इज B और C पे ऑपरेट करना है. सो इट बिकम्स B प्लस 2C. राइट. अब इसके अंदर ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकेंड एलिमेंट, तो इस पे जब हम ऑपरेट करेंगे इट विल बिकम A प्लस ट्वाइस ऑफ दिस विच इज़ इक्वल्स टू A प्लस 2B प्लस 4C. यहाँ पे हमारे पास था A प्लस 2B प्लस 2C, लेकिन यहाँ हमारे पास रिजल्ट आया A प्लस 2B प्लस 4C. तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स इट इज़ नॉट एसोसिएटिव. इसीलिए क्वेश्चन को करके देखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि वो एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव हो सकता है, लेकिन जब हम उस पर अप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी एज द नेम सजेस्ट